پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی کی بانی سے اڈیالہ جیل میں ملاقات. صاحبزادہ حامد رضا کہتے ہیں بانی سے ملاقات کنٹرولڈ ماحول میں کرائی گئی. بانی نے اپنی نہیں دیگر اسیران کی رہائی کی بات کی. چاہتے ہیں ظلم و ستم کا ازالہ ہو, غیر جانبدار کمیشن بنایا جائے جو ذمہ داران کا تعین کرے. جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا تو مذاکرات کا سلسلہ نہیں چل سکتا. مذاکرات کے لیے ہماری ڈیڈ لائن 31 جنوری ہے. بانی نے اسیران کا معاملہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس میں اٹھانے کی ہدایت کی ہے. کل ایک فیصلہ آنا ہے, ہمیں پتہ ہے وہ فیصلہ نیک نامی کا ذریعہ نہیں بنے گا. کمیٹی سے پہلے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے بانی سے 1.25 گھنٹے 1-on-1 ملاقات کی. کمیٹی کی ملاقات کے بعد سب سے پہلے روانہ ہوئے. احتساب عدالت 190 ملین پاؤنڈ منتقلی کیس کا فیصلہ کل سنائے گی. وکیل فیصل چودھری کہتے ہیں القادر ٹرسٹ کیس میں فیصلہ سزا کا نہیں بریت کا آنا ہے. میرے خیال میں فیصلہ لکھا جا رہا ہے اس لیے تاخیر ہو رہی ہے. شیخ وقاص اکرم کا کہنا تھا توقع ہے کیس کا فیصلہ کل سنایا جائے گا, مزید تاخیر نہیں ہوگی. 190 ملین پاؤنڈ سے 1 روپیہ بھی بانی یا بشرا بی بی نے استعمال نہیں کیا. پیسہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ہے, القادر ٹرسٹ میں تو یہ پیسہ آیا ہی نہیں. عدالت کل القادر ٹرسٹ کے حقائق پر فیصلہ سنائے گی. 190 ملین پاؤنڈ حکومتی خزانے کے بجائے کاروباری شخصیت کے اکاؤنٹ میں جمع کرایا گیا. ایک شخص نے اس کو ریلیف دیا جس پر الزام ثابت ہو چکا تھا. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں القادر ٹرسٹ کے تحت جو یونیورسٹی بنائی گئی اس کے بورڈ میں بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ شامل ہیں. پی ٹی آئی کا جی ڈی اے سربراہ پیر پگارا سبغت اللہ شاہ راشدی سے رابطہ. مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کی پیر پگارا سے لاہور میں اہم ملاقات ہوئی. محمد علی دورانی بھی موجود تھے. مستقبل کے لیے رابطوں کو مزید بڑھانے پر اتفاق کیا گیا. بیرسٹر سیف نے علی امین گنڈا پور کی طرف سے خیر سگالی کا پیغام دیا. پیر پگارا نے اپوزیشن کو قریب لانے میں محمد علی دورانی کے کردار کو سراہا اور کہا اپوزیشن جماعتوں میں باہمی رابطوں کے لیے محمد علی دورانی اپنا کردار بڑھائیں. بیرسٹر سیف نے پارٹی قیادت کی جانب سے محمد علی دورانی کی کاوشوں کی تعریف کی. طالبان خواتین کو انسان نہیں سمجھتے. دہائیوں سے تعلیم کا حق چھین رکھا ہے. طالبان نے خواتین کے حقوق چھیننے کے لیے 100 سے زائد قانون سازیاں کی. افغان لڑکیوں کی تعلیم کی بات نہیں کریں گے تو کانفرنس کا مقصد پورا نہیں ہوگا. نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کا اسلام آباد میں بین الاقوامی اسکول گرلز کانفرنس سے خطاب. کہا دنیا بھر میں 12 کروڑ لڑکیاں اسکول نہیں جا سکتی جن میں سے 1 کروڑ پاکستانی ہیں. دنیا کے رنگوں میں پاکستانی لڑکیوں کا حصہ بھی درکار ہے. غزہ میں اسرائیل نے پورا تعلیمی نظام تباہ کر دیا. سیکریٹری جنرل مسلم ورلڈ لیگ نے ملالہ کو اعزازی شیلڈ دی. 2 روزہ کانفرنس کا آج آخری روز ہے. خواتین کو بااختیار بنانے میں تعلیم کا سب سے بڑا کردار ہے. تعلیم کے باعث ہی معاشرے ترقی کرتے ہیں. وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی کا اسکول گرلز کانفرنس کے اختتامی سیشن سے خطاب. کہا پاکستان میں ہر لڑکی کے لیے معیاری تعلیم تک رسائی ممکن بنائیں گے. چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی بولے تعلیم کوئی استحقاق نہیں بلکہ بنیادی حق ہے. پاکستان ترجیحی بنیادوں پر بچیوں کی تعلیم کے لیے پرعزم ہے. ہماری حکومت کو عدلیہ کے ساتھ مل کر توڑا گیا تھا. فوج ملک کی حقیقت ہے, اسے تسلیم کرنا ہوگا. عوام پاکستان پارٹی کے رہنما شاہد خاقان عباسی نے کہا نواز شریف کے ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کو بانی نے اختیار کیا اور مقبول ہو گئے. نواز شریف کو 8 فروری کے الیکشن کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے تھا. اب سب جماعتیں الیکشن کے بعد آگے کا سوچیں. باہر بیٹھے پی ٹی آئی رہنما ملک کے خلاف سازشیں کر رہی ہیں. پختون کو پنجابی اور پنجابی کو بلوچ سے لڑانے کی سازش کبھی کامیاب نہیں ہوگی. مسلم لیگ نون کے رہنما حنیف عباسی کہتے ہیں یہ رات کو معافی مانگتے اور صبح اٹھ کر پریس کانفرنس کر دیتے ہیں. بانی پی ٹی آئی نے ہمیشہ ذاتی مفاد کو ترجیح دی ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف کا سیالکوٹ ریجن کی کرکٹ ٹیم کے اعزاز میں ظہرانہ. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی بھی شرکت. خواجہ آصف نے کہا سیالکوٹ میں کرکٹ کا بہت ٹیلنٹ ہے. یہاں اسٹیڈیم کے لیے 3 ارب روپے منظور ہوئے لیکن خرچ نہیں ہوئے. محسن نقوی نے بتایا سیالکوٹ اسٹیڈیم کے لیے PC1 تیار ہے. پی سی بی اور سیالکوٹ کی کاروباری شخصیات مل کر اسٹیڈیم کے لیے کام کر سکتے ہیں. آئندہ PSL کی نیلامی میں سیالکوٹ کی ٹیم بھی شامل ہوگی.
और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इब्तदाई स्क्वाड के ऐलान का आज आखिरी रोज। पाकिस्तान के स्क्वाड की तफसीलात सामने न आ सकी। टीम मैनेजमेंट को साइम अयूब की फिटनेस रिपोर्ट का इंतजार। न्यूजीलैंड और बांग्लादेश ने 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। नजमुल हसन शांतु बांग्लादेश, मिचेल साइमन की भी टीम की क़यादत करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात में अयाज सादिक खुलूसी नीयत से सहूलतकारी कर रहे हैं। फरीकैन फायदा उठाएं और मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें। तर्जुमान कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट का कहना है कशीदगी के खात्मे में अयाज सादिक का कलीदी किरदार है। ये स्पीकर की कामयाबी है कि एक दूसरे से हाथ ना मिलाने वाले एक मेज पर बैठे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई कहते हैं पीटीआई किसी के कहने और ना किसी खौफ से मुज़ाकरात कर रही है। पाकिस्तान के मफाद में मुज़ाकरात कर रहे हैं जैसे लीगी क़यादत सैबोताज कर रही है। ख्वाजा आसिफ मायूसी फैला रहे हैं। ऐसा कंफ्यूज्ड बंदा वज़ीर दिफा कैसे हो सकता है। वज़ीर आज़म, वज़रा और मरियम नवाज पूरा दिन बानी और पार्टी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। सारी हुकूमत बानी पीटीआई के एक ट्वीट की मार है। एनआरओ लेने वाला अब रायविंद में आराम कर रहा है और कल तक जो कहता था छोड़ूंगा नहीं, आज वो सबके पांव पकड़ रहा है। लीडर जेल में बैठकर इंतशार फैलाने के मंसूबे बनाता है और चेले बाहर मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। पीटीआई के लोग खुद नहीं चाहते कि बानी जेल से बाहर आएं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का असद कैसर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा मरियम नवाज को आपके महात्मा की ख्वाहिश पर 2018 के इलेक्शन से कबल नाअहल करवाया गया, लेकिन आज वो तारीख के भारी मैंडेट के साथ वज़ीर आला बनकर पंजाब की खिदमत कर रही हैं। पीटीआई ने वाशिंगटन को किबला बना लिया, वहीं लॉबिंग कर रही है। उनकी नीयत पर शक है। उन्होंने ट्रंप इंतजामिया से उम्मीदें लगा रखी हैं। ये समझते हैं ट्रंप इंतजामिया का एजेंडा नंबर 1 बानी पीटीआई होगा। दबाव आया तो पाकिस्तान अपने मफादात के मुताबिक फैसला करेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम एतराज है में गुफ्तगू। कहा मुज़ाकरात सैबोताज करने का कोई इरादा नहीं, दुआ है मुज़ाकरात से हल निकल आए, लेकिन उम्मीद नहीं है। कुरम में अमन के लिए एपेक्स कमेटी के फैसलों पर अमल दरामद की तैयारियां मुकम्मल। खारकले और बालशखेल में बंकर्स मिसमार किए जाएंगे। बंकर्स के खात्मे के वक्त एक्सियन भी मौजूद होंगे। ग्रैंड जिरगा मेंबरान की फरीकैन से बातचीत के लिए आज कुरम आमद का इम्कान। एपेक्स कमेटी और ग्रैंड जिरगे के फैसलों से मुतालिक गुफ्तगू होगी। बलूचिस्तान के इलाके संजदी में कोयले की कान से मजीद 7 मजदूरों की लाशें निकाल ली गईं। तादाद 11 हो गई। एक मजदूर की तलाश जारी। जाँ बहक 10 मजदूरों का ताल्लुक शांगला, एक का स्वात से है। हरनाई में कोयले की कान का एक हिस्सा बैठ गया। 2 मजदूर फंस गए। एक की लाश निकाल ली गई, दूसरे की तलाश जारी। अमरीका इंसानियत और जमहूरियत का दुश्मन है। इसराइल अमरीका की सरपरस्ती में फलस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मर्दान में खिताब। कहा कौम पर मफाद परस्तों का टोला मुसल्लत है। हुकूमत जागीरदारों पर टैक्स लगाने के बजाय गरीब के खून पसीने की कमाई निचोड़ रही है। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां। आईसीसी वफ्द की कज़ाफी स्टेडियम लाहौर आमद। तामीराती कामों का जायजा लिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी भी कज़ाफी स्टेडियम पहुंचे। इंतजामात पर ब्रीफिंग ली। कहा जदीद सहूलतों से आरास्ता कज़ाफी स्टेडियम रवामा मुकम्मल हो जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी को यादगार बनाने के लिए पुरअज़्म है। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बर्फबारी ने सर्दी मजीद बढ़ा दी। अस्तूर में पारा -11, स्कर्दू में -9, कालाम -7, हुंजा में -6 डिग्री तक गिर गया। बलूचिस्तान में भी शदीद सर्दी। लाहौर में हल्की बारिश से धुंध में कमी आ गई। मौसम खुशगवार हो गया। धुंध और मौसम की खराबी के बायस मुल्क भर में रेलवे ऑपरेशन मुतासर। ट्रेनें 13 घंटे ताखीर का शिकार। कराची में सर्द और खुश्क मौसम की लहर बरकरार। कल से ठंड में इजाफे की पेशगोई। फैसलाबाद के चिल्ड्रन अस्पताल में डॉक्टर और सिक्योरिटी सुपरवाइजर की खातून गार्ड से मुबैना ज़्यादती। थाना वेमन में मुतासरा खातून की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। डॉक्टर समेत 5 मुल्जिमान को नामजद किया गया। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में लगी आग पर काबू न पाया जा सका। काउंटी शेरिफ का कहना है तमाम तर कोशिशों के बावजूद सिर्फ 8% आग बुझाई जा सकी। जलते शोलों ने 12,000 से जायद घरों को जलाकर राख कर दिया। हलाकतें 16 हो गई। दर्जनों अफराद लापता। लूटमार के खदशे के बायस नेशनल गार्ड को तैनात कर दिया गया। मकामी अफराद ने घरों की हिफाजत के लिए गश्त भी शुरू कर दिया।
आग बुझाने के लिए सुपर पावर की पावर कम पड़ गई। कैदियों से भी मदद तलब कर ली गई। 1000 के करीब कैदी फायर फाइटर्स के साथ शोले ठंडे करने में मसरूफ हैं। शिमाली गजा में सड़क किनारे नस्ब बम का धमाका, 4 इसराइली फौजी मारे गए, 5 जख्मी। तल अवीव में इसराइली फौजी हेडक्वार्टर्स के बाहर हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे, इसराइली पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें, 2 अफराद गिरफ्तार। इसराइली फौज के ताजा हमलों में मजीद 32 फलस्तीनी शहीद, 200 के करीब जख्मी हो गए। नसीरात में एक और सहाफी शहीद हो गया। सिविल डिफेंस ने अपनी रिपोर्ट में बताया, गजा की पट्टी में इसराइली तैयारों से ममनुआ हथियारों की बमबारी से 7820 लाशें बकरात में तकलील हो गई। गजा की वजारत सेहत का कहना है, बाज हमलों में धमाके का दर्जा हरारत 4000 डिग्री से ज्यादा था। अल्ताबीन स्कूल पर हमले में भी ऐसा ही हुआ, बहुत सी लाशें खत्म हो गईं। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ओहदा संभालते ही 100 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जारी करने का मंसूबा। रिपब्लिकन सेनेटर्स की ट्रंप से मुलाकात, फौरी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के इजरा पर मुशावरत। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी सरहद पर सख्त सिक्योरिटी और इमिग्रेशन अव्वलीन तरजीहात में शामिल। बाइडन इंतजामिया के आखिरी दिनों के तमाम इकदामात वापस लिए जाएंगे। ट्रंप के खिलाफ तहकीकात करने वाले महकमा इंसाफ के स्पेशल काउंसिल जैक स्मिथ मुस्ताफी। ट्रंप के इलेक्शन में जीत के बाद जैक स्मिथ ने इल्जामात वापस ले लिए थे। जापान के वस्ती और शिमाली हिस्सों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। नेगाटा प्रेफेक्चर में 24 घंटों के दौरान 12 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। बर्फबारी ने मुख्तलिफ सड़कों को भी ब्लॉक कर दिया। ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए मशीनरी मौजूद। हुकाम ने शहरियों को बर्फानी तोदों से मुहतात रहने की हिदायत की है। स्टार खिलाड़ी आएंगे, पाकिस्तान सुपर लीग में रंग जमाएंगे। मेगा इवेंट की प्लैटिनम कैटेगरी की फहरिस्त जारी कर दी गई। डेविड वार्नर, जेसन रॉय, केन विलियमसन, टिम साउथी और दीगर 40 बड़े क्रिकेटर्स शामिल। HBL PSL सीजन 10 की ड्राफ्टिंग तकरीब कल लाहौर में होगी। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भारतीय टीम को बड़ा धचका, जसप्रीत बुमराह की इवेंट में शिरकत मशकूक। भारतीय मीडिया के मुताबिक फास्ट बॉलर की कमर में सूजन है। सिडनी टेस्ट में इंजरी का शिकार हुए थे। बुमराह इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज से भी बाहर हो गए।